Namaskar, good afternoon, Vande Matram. This is Mrs. Ranjana Upadhyay from KVS. Once again, welcome you to the discussion on D and F block elements. Dear friends, it is our second session on this particular topic, D and F block elements. So in the previous section, we discussed about transition elements. We discussed about D block elements. So let us take a preview what we have discussed in the first session. We discussed about this particular group, D block. Screen is visible, I think. Yes. So we discussed about D block elements, and we discussed that this particular group is having 4 different series: 3D, 4D, 5D and 6D. There are 4 series and each series is having 10 elements. So 1, 2, 3, 4, 10, 10. We discussed about 40 elements, the properties and uses of these elements. और आपको याद होगा जब हम ये डिस्कस कर रहे थे, then we discussed about 5D and 6D electronic configuration and atomic number. So here at 5D you saw there was just one. At 5D series we had lanthanum 57, and after lanthanum we have got hafnium. Okay, and hafnium has got atomic number 72. At 6D series we have got actinium, and this actinium, after 89 we had Rutherfordium 104. So what happened to this atomic configuration? What happened actually? Because from 58 to 71, and here from atomic number 90 to 103, from 58 to 71 14 elements, and from 90 to 103 14 elements. Actually what happened, the 4f orbitals started filling at this particular, after lanthanum and after actinium. Here 4f started filling and here 5f started filling. So that is why the last electron entered into the f orbital. You know what is the reason behind these 4 blocks S, P, D, F? Why do we differentiate in the periodic table as S block, P block? जो basis है इसका आपके जो classification का, that is कि जो आखिरी electron है that enters into S orbital, then they are S block element. If it enters into P block, these are P block elements, and if it enters into the D, these are D elements. But when the last electron, आखिरी जो electron है, when it is entering into the F orbital, they become F block elements. Now there are 2 different groups for us. One is 4f group and other is 5f group. अब उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं, दे आर ऑल टुगेदर डिफरेंट. दैट्स वाई दे हैव बीन कैप्ड एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल के बॉटम पर इनको रखा गया. एंड इन द प्रेजेंट scenario, present days, we see the periodic table like that. Now this is the layout of periodic table. So this is S, this is P, these are the 4 series of D and these are the 2 series of F. Here the last electron is entering into S, here the last one is entering into P, here the last one is entering into D, and here the last electron is entering into 4f, here the last one is entering into 5f orbital. Okay, so there are 2 different series, 4f series and 5f series, and today we are gonna discuss about
these 4F and 5F series, because in the previous section we have discussed about 3D, 4D, 5D and 6D series, the transition elements. Okay, so are you ready everyone? So take out your notebooks and pen and note down. Yes, these 4F series. You see the preceding element is 57 और 57 के बाद में आपका जो 58 एलिमेंट है सीरियम, ठीक है, 58 one is cerium. Here configuration is xenon 4f0 5d1 6s2 and you see the configuration 4f1 5d1 6s2. So you can observe here the last electron is entering into f orbital, कुछ ऐसा है 4f, ठीक है, उसके बाद आपका 5s 5p 5d 6s like that, right? So here you can see if you go shell wise 4f 5d 6s, these are three shells, ठीक है, this is another shell, this is another shell. It will be having 6p 6s 6d, है ना, it is having 5s 5p 5d 5f, so ऐसे करके these are shells and you see the electron, the last electron है, it is entering into the third from the outer shell से third orbital में ये प्रवेश करता है, enter करता है and this particular shell is known as anti-penultimate. एंटी-पेनल्टीमेट, अगर ऑर्बिटल की बात करें इट इज़ एन एंटी पेनल्टीमेट ऑर्बिटल. एंटी पेनल्टीमेट मतलब बाहर से कौन सा नंबर है उसका, अंदर के बाद एक और, सो थर्ड वन फ्रॉम द आउटर साइड, ठीक है. सो दिस इज एन अल्टीमेट. डी में हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था कि अगर हम डी देखें तो इट वाज 4d एंड इट वाज 5s, राइट. तो डी में क्या था, लास्ट इलेक्ट्रॉन वाज एंटरिंग हियर, दैट वाज पेनल्टीमेट. तो यू शुड नो द डिफरेंस वेरी क्लियरली. और यही जितना भी प्रॉपर्टीज़ का आप डिफरेंस देखेंगे, वेदर इट इज़ रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी और एनी अदर थिंग, इट लाइज बिकॉज ऑफ द एंट्रेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू पेनल्टीमेट और एंटी पेनल्टीमेट, ठीक है. तो लेटर हम धीरे धीरे इसको रिवील करेंगे कि कैसे ये प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आते हैं. सो वन थिंग शुड बी वेरी क्लियर दैट इन डी द इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू n-1, मतलब अगर ये ns है तो इट विल एंटर इनटू n-1d, ओके. बट इफ इट इज f ऑर्बिटल देन इट विल एंटर इनटू n-2f, ठीक है, ये n-2f हो जाएगा. सो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या हो जाएगा फॉर डी. हम कंपेयर करके ही आगे बढ़ते हैं. फॉर डी या ट्रांजिशन एलिमेंट की अगर हम बात करें, the general electronic configuration is n-1d 1 to 10 ns 1 to 2, ठीक है. अब तो याद हो गया होगा सबको, बहुत इजी है कि the last electron will enter into n-1d orbital. And if you go for f block, or these are also known as inner transition. देखिए ट्रांजिशन मैंने आपको बताया था, ट्रांजिशन actually what happened, the s block elements are quite electropositive, they are highly reactive, they are metals but they are highly electropositive in nature, बहुत ज़्यादा reactive हैं. तो मैंने हमने डिस्कस किया था कि प्रैक्टिकली अगर सिग्निफिकेंस की बात करें, व्यवहारिकता की दृष्टि से हम देखें तो हमारे लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं है. एंड इफ़ यू गो फॉर P block, so you have got non metals and gases there. केवल 3 metals को छोड़ते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं. There are almost non metals, and non metals are amorphous, non conducting, है ना, not so much hard, soft होते हैं. तो उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो इट इज़ इन द अदर वे. बट इफ़ यू सी बहुत स्टेबल हार्ड चीज़ें आपको चाहिए तो यू फाइंड दिस डी ब्लॉक. एक्चुअली अगर हम देखें हमारे आसपास हम ये डी ब्लॉक के सब्सटेंसेस से घिरे हुए हैं. So transition माने there is some change in the behavior.
ठीक है। तो एस की तरह बहुत रिएक्टिव नहीं है, पी की तरह गैसेस या अदर प्रॉपर्टीज नहीं कैरी करते, सो देयर प्रॉपर्टीज आर इन बिटवीन एस एंड पी, सो देयर इज ट्रांजिशन इन द बिहेवियर, ये ट्रांजिशन होते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट एफ ब्लॉक को कहा जाता है, क्योंकि जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो n-2, जो आपका n-1 था पेनल्टी मेट था, उसके भी अंदर वाले में ये जाता है, सो दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, राइट। So what may be the electronic configuration, general electronic configuration for inner transition या F block members को? It is n-2 F1 to 14 n-1 D0 to 1, right? ns2, ठीक है, this is ns2. None of the member is having ns1, as in chromium and copper you observed 3d5 4s1 3d10 4s1. Here you won't observe any ns1 because इसके just बाद जो है वो d आ जाता है, तो अगर if someone enters some of the electron enters एक आध कोई हैवी, तो it will enter into d, ठीक है। ऐसा 1 नहीं होगा। अगर F7 करना है या F14 का केस है, एज यू सॉ इन ट्रांजिशन एलिमेंट, कि वहाँ पर अगर D5 या D10 का पर्टिकुलर केस बन रहा था, क्रोमियम की अगर हम बात करें इट वॉज 3d5 4s1, और कॉपर की अगर बात करें इट इज़ 3d10 4s1, क्योंकि उसके जस्ट बाद 4s आ रहा था। यहाँ भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो वी विल सी, अगर F में कितने होते हैं, 7 होते हैं, तो F7 होगा या F0 होगा या F14 होगा, तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अटेन करने को इट विल गो, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन विल गो इनटू D रादर देन गोइंग इनटू F, ठीक है। तो ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। एंड यस, एक बहुत क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि 4F मेंबर्स को हम क्या कहते हैं। 4F मेंबर्स आर नोन एज lantanoids. These members are known as lantanoids. They are also known as rare earth metals या elements कह सकते हैं। They are also known as rare earths because they are rarely found. पाए भी जाते हैं नेचर में, तो बहुत ज़्यादा combined state में होते हैं. Separation is also not easy. They are rare earth elements. They are known as lanthanoids. अब आपसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछते हैं कि why do we call them lanthanoids? ठीक है, तो why do, because आपका जो प्रेसाइडिंग एलिमेंट है 57, इट इज लैंथेनम, और लैंथेनम के बाद ही आपका जो 4F ऑर्बिटल है इट स्टार्ट्स फिलिंग, दैट्स व्हाई इसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया लैंथेनाइड्स। अगर आप सभी मेंबर्स को कलेक्टिवली देखें तो आप ये सिंबल देते हैं फॉर लैंथेनाइड्स, एलियन। कहीं पर भी अगर आपको ये कुछ रिएक्शन दी हुई है तो इट इज़ आस्किंग फॉर अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, बिकॉज इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत हद तक सेम होती हैं, ठीक है। और बहुत हद तक सेम होने की वजह से ही उनका जो सेपरेशन है वो आसान नहीं होता। क्यों सेम होती हैं उसके लिए हम आगे जाते हैं। सो फर्स्ट वी move into the names of the members of lanthanoid series, and yes, of course, if you go for n-2 F1 to 14 n-1 D 0 to 1 ns2, फॉर लैंथेनाइड्स 4F भरना शुरू होगा, यानी कि n इज इक्वल टू क्या होगा 6 हो जाएगा, है ना। n-2 करेंगे तो इट इज 4F 1 to 14, it will be 5D 0 to 1 and it will be 6s2। ये लैंथेनाइड्स का कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने को मिलेगा। D में 0 या 1 होगा, 6s में हमेशा 2 होगा, और प्रोग्रेसिवली जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक 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 करके 1 से 14 तक प्रोग्रेसिवली भरेंगे। सो वी हैव 14 एलिमेंट्स जिनके नाम मैं आपको यहाँ लिख के दिखाती हूँ। कुछ ना कुछ पैरोडी बनाइए आप अपने हिसाब से कि आपको मेंबर्स के नाम आसानी से याद हो जाए। सो बिकॉज लैंथेनम इज प्रेसाइडिंग एलिमेंट, तो वो इसकी प्रॉपर्टी इसके, दो इट इज़ नॉट लैंथेनाइड बट वी विल डिस्कस इट्स प्रॉपर्टीज हियर ओनली। सो वी हैव सीरियम, प्रोसियोडाइमियम, न्यूडाइमियम, प्रोमीथियम, सैमोरियम, ठीक है। एक एक करके बताती हूँ। लैंथेनम, सीरियम, प्रोसोडाइमियम, न्यूडाइमियम, प्रोमीथियम, सैमोरियम, ठीक है।
यूरोपियम, गैडोयेनियम, टर्बियम। आधा आधा कर लेते हैं एक्चुअली, 7 हो गए। सो यूरोपियम, गैडोयेनियम, टर्बियम, डाइस्प्रोसियम, हॉल्मियम, इर्बियम, यट्टरबियम एंड यूटेशियम। ठीक है। सो लैंथेनम, सीरियम, प्रोसियोडाइमियम। एक्चुअली मैं आपको पीपीटी के थ्रू ये शो कर दूंगी। नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, इट इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। ठीक है। सेमोरियम, यूरोपियम, 2 बार हो गया। गैडोयेनियम, टर्बियम, डाइस्प्रोसियम, हॉल्मियम, इर्बियम, यट्टरबियम एंड यूटेशियम। ठीक है। अपनी बुक में देखिए, अच्छे से उसको याद करिए। दिस इज 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। एक रह गया यहाँ पर, थूलियम, 69, 70 एंड 71। दिस इज थूलियम। ठीक है, याद कर लीजिए इसको। नाउ वी विल सी देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो वन बाय वन हम देखेंगे, एंड इट इज क्वाइट इजी, कोई बहुत टफ नहीं है। सो इट इज ज़ीनन 4F05D16S2. It will be xenon 4F15D16S2. ठीक है, it is visible I think. प्रोसियोडाइम में आई एम नॉट राइटिंग xenon, मैं डायरेक्ट आपको लिखते हुए दिखा देती हूँ। इट इज 4F3 5D06S2। ठीक है, देखिए 1 2, so both the electrons are coming into F, और जो नेक्स्ट आखिरी वाला है, it is also coming into F. It will be 4F3 5D06। अब ये सब 5D0 रहेगा। 4F4 5D06S2। ठीक है, 4F5 5D06S2, 4F6 5D06S2। ठीक है, और अगर आप देखें गैडोयेनियम में इट विल बी 4F7 5D0। कहीं पर कुछ गड़बड़ हुआ है। 3 4 5 6 7 3, ओ सॉरी 3 4 5 6 एंड 7। यस, बिकॉज इट इज 5D1। इसके बारे में आपको बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे। गैडोयेनियम का याद कर लीजिए, 4F7 5D1 6S2। ठीक है। मुझे लगता है स्क्रीन पर, यस, गैडोयेनियम इज 4F7 5D1 6S2। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 7 हो गया था, और F7 यानी कि हाफ फिल्ड करने को, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड करने को, 1 इलेक्ट्रॉन एंटर्ड इनटू D। तो एक्स्ट्रा बोर्ड स्टेबिलिटी बोर्ड थोड़ा गैडोयेनियम कट अगेन। रहा है अभी। जी, बोर्ड थोड़ा कट रहा है ऊपर, बोर्ड थोड़ा कट रहा है ऊपर से, ओके थोड़ा सा ओके, और। ठीक है, मैं इसको इधर लिख देती हाँ जी, हाँ जी। हूँ। गैडोयेनियम 64 4F7 5D1 6S2। This is very important. Okay. Now terbium again 4F, अब 7 के बाद क्या आना चाहिए? 8 9, 7 8। Now 9 4F9 5D0 6S2
4F10, 5D0, 6S2, 4F11। अब तो आपको याद हो गया होगा आगे क्या होना है। 4F12, 5D0, 6S2, 4F13, 5D0, 6S2, 4F14, 5D0, 6S2 and 4F देखिए 14, then 5D1, 6S2, right? Once again we'll see the electronic configuration. It is quite important, one should remember these facts. For lanthanum it is 4F0. From cerium onwards F starts filling. So cerium is 4F1 and then promethium 4F3, 4 प्रोसोडाइमियम 4F3, देन F4, F5, एक्सेस F7 के बाद फिर से 7 होगा 5D1, ठीक है। एंड वो कंटिन्यू करेगा एंड हेयर F14 आपकी कंप्लीट हो गई है, सभी पेयर हो चुके हैं, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू 5D1, ठीक है। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर यू कैन फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट्स। You know there are if you go for oxidation states, they show many oxidation states. They also have a property of showing variable oxidation state. But if you see, +3 is their common oxidation. I am writing some of the oxidation state to this side. For lanthanum the common oxidation state is +3, because you see if it will remove the 3 electrons, 5D1, 6S2, मतलब 1 + 2, ये 3 रिमूव कर देगा, इट विल अटेन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज़ीनन, ये ज़ीनन का अटेन करिएगा एंड दैट्स व्हाई इट विल हैव अ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3। अगेन फॉर सीरियम द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +4, क्योंकि ये 4F1, 5D1, 6S2 चारों को रिमूव करके इट विल अटेन ज़ीनन कॉन्फ़िगरेशन। So for that it is +4, but +3 is its common oxidation state. For every other member, +3 is the common oxidation state. But apart from common oxidation state +3, they also show other oxidation state, like cerium shows +4, ठीक है। अगर हम न्यूडाइमियम की बात करें, it shows +3 and +4 both. If you see यूरोपियम, है ना, यूरोपियम में आप देखिए 4F7, 5D0, तो +3 इज लेस कॉमन बट मोर कॉमन इज +2। आपसे क्वेश्चन भी आएगा कि यूरोपियम +2 में स्टेबल है एंड नॉट इन +3, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो यू विल सी इफ इट इज इन +2 स्टेट इट इज 4F7, राइट। तो हाफ फिल्ड है, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, दैट मीन्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अटेन करेगा एंड दैट इज व्हाई इट शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर गैडोलिनियम यू सी इट शोज ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि उसके बाद ये 4F7। अगर आपसे कोई पूछे कौन से ऐसे मेंबर हैं जो सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं, तो लैंथेनम, गैडोलिनियम एंड द लास्ट वन ल्यूटीशियम, क्योंकि हेयर इट इज F14। तो F0, F7, F14 ये एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस हैं, एंड इन ऑर्डर टू अटेन दिस कॉन्फ़िगरेशन लैंथेनम, गैडोलिनियम एंड ल्यूटीशियम दे शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखे जाए तो टर्बियम भी आपका +4 दे देता है, टर्बियम आपका +4 दे देगा। डाइसप्रोसियम अगेन गिव्स +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अदर मेंबर्स जनरली शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। देयर इज वन मोर मेंबर, इफ यू सी यट्टरबियम, ओके, इफ यू सी यट्टरबियम, ये सारा हम मिटा रहे हैं। अगर आप देखें यट्टरबियम को, इट इज 4F14, यूरोपियम, यट्टरबियम, they show +2, this is 4F7, this is 4F14, ठीक है। 5D0, 6S0, 5D0, 6S0, this 0 is in the ionic state। अगर ये सिर्फ यट्टरबियम होता है 6S2, this is 6S2 in, so यूरोपियम and ytterbium show +2 oxidation state, they are found more common, and lanthanum +3, gadolinium +3 and lutetium +3, because here it will become 4F0, it will become 4F7, it will become 4F14.
सो ये बहुत क्लियर है आपको और आप इसे समझ सकते हैं कि हाउ दे शो ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट दे आर स्टेबल. So if any question is raised behind their stability to why it is found in such a solid state or like that, you can answer on the basis of the electronic configuration. You see, when F0, F7 and F14, these are F7 and F14 are extra stable. F7 is half filled, it attains extra stability. Even इट वॉन्ट शो ट्रांजिशन, एक कलर शो करने को जैसे डी डी ट्रांजिशन होता है वैसे ही एफ एफ ट्रांजिशन होता है फॉर एफ. बट 7 इतना ज़्यादा आपका देखिए स्टेबल है कि वो उनको ऐसा इंटैक्ट रखता है इलेक्ट्रॉन को, एंड वो मूव भी नहीं कर पाते, तो कलर कोई भी कलर नहीं है. या टर्बी जो गैडोलिनियम के आपके +3 सॉल्ट है, दे हैव नो कलर. ठीक है, जैसे आपने ट्रांजिशन एलिमेंट में देखा था कि वो डी डी ट्रांजिशन शो करते हैं, सो दैट इज़ वाई दे वर कलर्ड, बट हेयर दे आर नॉट इवन मैग्नीज का आप लोग देख रहे थे कि मैग्नीज में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 अनपेयर्ड हैं, तो इट शुड बी वेरी हार्ड, लेकिन मैग्नीज बहुत सॉफ्ट होता है. वही क्योंकि आपका D5 कॉन्फ़िगरेशन है और वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अटेन करता है, तो हीट ऑफ एटमाइजेशन उसकी और पुअर हो जाती है. मेटल मेटल बॉन्डिंग और पुअर, वो अपने में ही हैप्पी है. ठीक है, बॉन्डिंग के लिए मैं एक सेशन ले चुकी हूँ, मैंने बताया था बॉन्डिंग और हैप्पीनेस का रिलेशन. सो वो मेटल्स अपने आप में बहुत हैप्पी हैं एंड उनकी मेटल मेटल बॉन्डिंग इज़ क्वाइट वीक, राइट. तो स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आता है. नाउ हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की तरफ मूव करते हैं. ठीक है, सो द प्रॉपर्टी इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी. अगर देखें हम इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी IE1 IE2, ये इट इज़ अराउंड 600 किलो जूल पर मोल एंड IE2 इज़ अराउंड 1200, जस्ट इसकी डबल. तो फर्स्ट एंड सेकंड तो ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पीज जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वो बढ़ती जाएंगी, पर बहुत ज़्यादा आपको चेंजेस नहीं मिलेंगे. बट IE3 का देखिए तो देयर विल बी नो रेगुलर ट्रेंड, एबनॉर्मल कह सकते हैं. यू विल सी एबनॉर्मल आयोनाइजेशन, कहीं ऐसा ट्रेंड, कहीं ज़्यादा कहीं कम कहीं ज़्यादा. तो जैसे कहीं कम कहीं ज़्यादा, तो बात करें अगर वही अगेन आपका क्वेश्चन हो गया लेंथेनम +3 F0, गैडोलिनियम +3 F7, इसी तरीके से ल्यूटीशियम +3 F14. ठीक है, आपसे क्वेश्चन रेज होगा कि इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज हैं ये बहुत कम है जबकि हाई होनी चाहिए, बिकॉज दे आर ऑन द राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड साइज डिक्रीज हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपका इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन न्यूक्लियस से बढ़ रहा है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए. बट इनकी कम होती है इन सॉल्ट में, इन आयंस में, बिकॉज उनमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है, तो वो बाहर वालों को आसानी से रिमूव कर देते हैं आपके डी के और एस के, और ये दे बिकम हैप्पी विद F0, F7 एंड F14 कॉन्फ़िगरेशन, राइट. एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट about the color. ठीक है, लास्ट सेशन में आई शोड यू सो मैनी ट्रांजिशन एलिमेंट्स विच वर ब्यूटीफुल कलर्स. कोई ग्रीन था, कोई पिंक था, कोई रेड था, कोई और डिफरेंट कलर में था. जिंक हमने देखा इट वॉज हैविंग नो कलर, कोई भी कलर नहीं था, बिकॉज इट वॉज नॉट हैविंग एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. सो कलर इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. जिनके पास अनपेयर्ड होगा, दैट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैज़ अ टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब रेडिएशन एंड वो डी डी ट्रांजिशन कर रहा था. तो इन द सेम वे भाई कलर शो करने को देयर शुड बी सम चार्ज बॉडी जो एब्जॉर्ब करे, जो हायर ऑर्बिटल में जाए, it come back and radiate some energy, and what the color we see is the color of transmitted radiations. Okay, so for D that was DD transition, for F it is FF transition. पर मैं आपको अगर जनरल बात बताऊं तो जितने भी लैंथेनाइड्स हैं आपके, एक्टिनाइड्स हैं, वो जनरली सिल्वरी वाइट, जैसे जैसे आप हायर एटॉमिक नंबर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, कलर सिल्वरी वाइट ग्रेइश होना शुरू हो जाता है. तो ऑलमोस्ट सभी सिल्वरी वाइट ग्रेइश हैं. बट अगर इनके सॉल्ट को देखें जिसमें +2 +3 या अदर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये हैं, तो आपको पिंक, पर्पल, कुछ और भी कलर्स देखने में आते हैं. एंड रिमेंबर दिस थिंग दैट द कलर इज ड्यू टू FF ट्रांजिशन. ठीक है, इट इज ड्यू टू FF ट्रांजिशन.
देयर शुड बी नो डाउट इन दैट। ओके, और एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि NF और 14 माइनस F या N कर दें, जिनका NF है और जिनका 14 माइनस NF इलेक्ट्रॉन है, दे हैव सेम कलर, उनका सेम होगा। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर लैंथेनम +3 की बात करें, ठीक है, इट इज हैविंग F0 कॉन्फ़िगरेशन और इसका साथी कौन है, ल्यूटीशियम +3। इसके पास F में कितने थे, 14 थे। अगर 14 माइनस N करेंगे तो इट विल बी F0 अगेन। ओके, सो बोथ ऑफ देम आर कलरलेस। ये फैक्टर तो समझ में आ रहा है भाई, F0 है तो कलरलेस होगा, ऑब्वियसली, इट इज क्वाइट ऑब्वियस। इफ यू सी प्रोमीथियम +3, ठीक है, प्रोमीथियम +3 इज 4F2। और अगर हम देखें थूलियम +3, ये आपका था 4F12, तो 14 में से माइनस करेंगे, ये भी F2 आ जाएगा। बोथ ऑफ देम आर ग्रीन, दोनों ही ग्रीन होंगे, ठीक है। इफ यू सी न्यूडाइमियम +3, it is 4F3, and if you see erbium +3, it is 4F11। 14 माइनस ये करेंगे, 11 करेंगे तो आपके पास F3 आ जाएगा। एंड बोथ ऑफ देम आर पिंक। बहुत ही अच्छा सा ऑब्जर्वेशन है। इफ़ यू सी सेमूरियम, सेमूरियम के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो सेमूरियम है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, 1600 के भी ऊपर, 1575 समथिंग है, उस पर भी ये नहीं होता, तो बहुत हाई MP होता है, और जिसकी वजह से इसका अपना प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस है। सो सेमूरियम, अगर इफ़ यू सी सेमूरियम +3, इट इज़ 4F5, and if you see dysprosium +3, it is 4F9। so again it will be F5, and ये दोनों कैसे होती है, ठीक है। एक और बताएं, नोट करते जाइए। यूरोपियम +3, राइट, इट इज 4F6, एंड टर्बियम +3, इट इज 4F8, तो F6 हो जाएगा। एंड दीज आर पेल पिंक, मतलब पिंक, थोड़ा सा लाइटिश पिंक इनका होता है। बट ये जो ऑब्जर्वेशन है, आप हर केस में कहें कि ऐसा ही होगा कि अगर जिनके F इलेक्ट्रॉन्स कॉमन हैं, यू सी व्हेन एलिमेंट्स आर क्वाइट बिगर विच आर हैविंग हायर एटॉमिक नंबर, कुछ कुछ तो ऐसे हैं कि जो जिनका सेपरेशन बहुत मुश्किल है, कुछ कुछ ऐसे जिनके कुछ एटम्स ही हमारे पास हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके आए हैं, एंड रेडियो एक्टिव है या देयर इज़ एनी अदर प्रॉपर्टी, तो समटाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी दैम। Okay, and you can't generalize, their properties are quite different from one to another। so ये एक जनरल, आप ये ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं, बट 100% इसको जनरलाइज कर दें, इट इज़ नॉट सो। बिकॉज इफ़ यू सी सेमूरियम, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में जाए तो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में थे। इफ़ यू गो फॉर सेमूरियम +2, ठीक है, इट विल बी F6 कॉन्फ़िगरेशन, एंड इफ़ यू गो यूरोपियम +3, इट इज़ F6। मैंने कहीं लिखा भी था ये 4F6, लेकिन दोनों में इलेक्ट्रॉन तो कॉमन है, बट इट इज़ ब्लड रेड, है ना, और ये कैसा था, पेल पिंक। तो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में जब हैं तो कलर्स उनके डिफरेंट आ रहे हैं, ऑल्दो यू कैन से दैट कलर इज ड्यू टू FF ट्रांजिशन। So now magnetic property. Magnetic property. See, you see the magnetic property, when something is having unpaired electron, it will be attracted towards the magnetic field. It is paramagnetic in nature. If it the electrons are paired, it is diamagnetic। अब कुछ और हम लोगों ने solid state में paramagnetic, anti paramagnetic हमने कुछ देखे हैं, बट हेयर हमारा मेन जो फोकस है, इट इज़ आइदर इट विल बी पैरामैग्नेटिक और इट इज़ डायमैग्नेटिक। सो पैरामैग्नेटिक व्हेन इट इज़ वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। आप अपने घर में कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट, सिंपल, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल रखिए, व्हेन द थिंग्स आर, एक वायर बना लीजिए चीज़ों का, उस वायर को हैंग करिए, अगर वो सीधा हो जाता है, अगर वो इस तरीके, अगर वो
आपने यूं रखा है और वो यूं हो जाता है, मैग्नेटिक लाइंस उससे पास हो रही है तो इट इज़ अट्रैक्टेड, और अगर वो रिपेल हो रहा है आपको दिख जाएगा, इट इज़ रिपेल्ड, इट इज़ डायमैग्नेटिक. So the magnetism is due to the presence of unpaired electron. Of course, they are also having unpaired electron. They have partially filled f orbital. So they, some of them or their ions, they are magnetic or paramagnetic in nature. लेकिन एक बात आपको नोटिस करनी पड़ेगी कि कोई भी मैग्नेटिज्म कैसे अराइज होती है. यानी चार्ज बॉडी इज मूविंग अराउंड सम चार्ज. जैसे एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, इट इज़ अ टाइनी मैग्नेट बिकॉज इट इज़ अ चार्ज बॉडी एंड इट इज़ मूविंग, है ना. तो if you see electron, it has two types of motion. एक तो ये इस तरीके से स्पिन कर रहा होता है, ठीक है, ये स्पिन हो गया, अपनी ही एक्सिस पर स्पिन कर रहा है और जिस ऑर्बिट में है उसके चारों अराउंड मूव कर रहा है. तो ये कुछ ऐसे पृथ्वी की तरह ये अपनी एक्सिस पे भी घूम रही है और अपने ऑर्बिट में भी घूम रही है, ठीक है. तो दो तरह के मूवमेंट है सी, एक तो ये अपने एक्सिस पे घूम रहा है, एक ये अपने ऑर्बिट में घूम रहा है. दो तरह के मोशन है, एक स्पिन मोशन है एंड एक है ऑर्बिटल मोशन, ठीक है. अब जो मैग्नेटिक मूवमेंट स्पिन की वजह से होगा, आप म्यू स्पिन ओनली कहते हैं उसको. तो जो भी मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो म्यू स्पिन स्पिन मूवमेंट की वजह से होता है. जो भी ऑर्बिटल की वजह से उसे आप ऑर्बिटल मोशन कहते हैं. कहने का अर्थ ये है कि दोनों मूवमेंट की वजह से देयर विल बी सम मैग्नेटिक मूवमेंट. अब ये सम भी हो सकता है, दोनों का सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं. बट अगर आपको याद हो ट्रांजिशन एलिमेंट में हम म्यू क्या निकालते थे, √n(n+2), ठीक है, बोर मैग्नेटॉन, जहाँ n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, तो ये म्यू स्पिन ओनली वैल्यू थी, ठीक है, ये म्यू स्पिन था. हालांकि ट्रांजिशन में भी स्पिन मूवमेंट और ऑर्बिटल मूवमेंट दोनों ही अराइज होते हैं. बट एक्चुअली में क्या होता है कि जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो उनमें बस ये आपकी n-1d है और बाहर की तरफ एक्सपोज आपका ns है. तो ये बाहर के एनवायरनमेंट की तरफ एक्सपोज्ड, जो आपके डी इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर एक्सपोज्ड, वो उतना ज़्यादा प्रोटेक्टेड नहीं है. जब इतना ज़्यादा प्रोटेक्टेड नहीं है तो डिफरेंट लिगेंड्स जो इसके चारों तरफ हैं, जो अप्रोच कर रहे हैं, इनका मैग्नेटिक मूवमेंट इनके टच में आता है और ये क्वेंस्ड हो जाता है. क्वेंस्ड यानी कि वैनिश हो जाता है या ख़त्म कर दिया जाता है या इसका रेट कम कर दिया जाता है. तो उनका भी कुछ मूवमेंट है, आपस में ये सब कैंसिल आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से केवल म्यू स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट है, ठीक है. बट इफ़ यू टॉक अबाउट एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो उसका जो म्यू है वो दोनों का होगा, म्यू स्पिन होगा प्लस म्यू ऑर्बिटल मोशन, दोनों का आप कंसीडर करेंगे एंड इट विल बी √4 4s + 1 + l + 1 4s. यस, दिस इज जहाँ पर s आपका क्या है, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट है, क्वांटम नंबर, नेट जो रिजल्टेंट आपकी क्वांटम नंबर आएगी, एंड l जो है आपका दिस इज ऑर्बिटल मोमेंटम कह लीजिए या मैग्नेटिक मोमेंटम क्वांटम नंबर, या मोमेंटम कह लीजिए, ऑर्बिटल मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक है. तो जो भी क्वांटम नंबर इनका सम होता है. तो इट इज़ नॉट दैट इजी टू कैलकुलेट मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर लैंथेनाइड्स, but still they are paramagnetic in nature and from very specific techniques you can calculate. Okay, so जो मैं बार बार बात कर रही थी केमिकल रिएक्टिविटी की, so if you go for chemical reactivity, इनकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है दैट इज़ ज़्यादा रिएक्टिव हैं एंड सभी की रिएक्टिविटी ऑलमोस्ट एक जैसी है. उसका वजह क्या है कि 4f आपकी डीप सीटेड है, फिर ये आपके बाहर की तरफ 5d है, 5p कर लीजिए, 6 5d है, 6s है, तो बहुत सारे बाहर की तरफ है, जिससे कि ये जो 4f है ये एक्सपोज्ड नहीं है टू द एनवायरनमेंट एंड ये ही आपस में जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देते रहते हैं. तो सबकी जो रिएक्टिविटी है ये ऑलमोस्ट सेम है एंड दैट इज़ वाई देयर सेपरेशन इज़ नॉट ईजी, ठीक है. तो अगर रिएक्टिविटी देखें तो हम जैसे हम थोड़ा कुछ बता सकते हैं आपको. सभी
सिल्वरी वाइट सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, सब टार्निश कर जाते हैं एयर में। एंड सभी एयर में जो ऑक्साइड बनाते हैं Al2O3 टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, एक्सेप्ट सीरियम, क्योंकि सीरियम CeO2 सीरियम +4 में ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए सीरियम फॉर्म्स CeO2। इफ़ यू गो फॉर यट्टरबियम जो है इट रेस्ट्रिक्ट्स ऑक्सीडेशन, ये नहीं करता क्योंकि इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑक्साइड की बन जाती है, तो ये रेस्ट्रिक्ट करता है। हार्डनेस इंक्रीज़ करती है एंड सेमोरियम इज़ वेरी हार्ड, जैसे मैंने आपको बताया करीब 1623 केल्विन पे सेमोरियम मेल्ट करता है। हालांकि अगर इनके मेल्टिंग पॉइंट देखें तो 1000 से ये के 1275 केल्विन तक होते हैं, बट सेमोरियम इज़ द ओनली वन विच इज़ सो मच हार्ड। ठीक है, सभी की अगर आप बात करें, ये सभी हाइड्रोजन से रिएक्ट, मैं एक लैंथेनम को बना देती हूँ विथ H2 दे फॉर्म लैंथेनम के हाइड्राइड, ट्राई ऑक्सीडेशन स्टेट में विथ X2 दे फॉर्म हाइलाइड्स। ठीक है, वाटर के साथ अगर आप करेंगे तो ये हाइड्रोक्साइड भी बनाएंगे एंड हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करेंगे। विद नाइट्रोजन दे फॉर्म नाइट्राइड N3-। विद सल्फर दे फॉर्म An2S3 एंड विद कार्बन दे फॉर्म कार्बाइड। कई तरीके के कार्बाइड बनाएंगे। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट रिएक्टिविटी। ये आपकी बुक में अच्छे से रिएक्शंस दी हुई हैं, यू स्टडी दैम। हाइड्राइड हाइलाइड सबसे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और यहाँ एक चीज़ आप देख रहे होंगे, ये जो है हाइड्रोक्साइड, इन पर आपको क्वेश्चन आएगा। हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, तो अगर फर्स्ट मेंबर देखें लैंथेनम हाइड्रोक्साइड और लास्ट मेंबर देखें ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड, क्वेश्चन आपसे आएगा कि बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। एक्चुअली लैंथेनम +3 से लेकर ल्यूटीशियम +3 तक साइज डिक्रीज करेगा। ठीक है, जब साइज डिक्रीज करेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। फजांस रूल पे जाइए कि कैटायन का साइज जितना छोटा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। तो जब साइज डिक्रीज करेगा कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेज एंड आयनिक कैरेक्टर वुड डिक्रीज। When ionic character decrease, this metal OH bond becomes weak and that is why it is the strongest base and it is weakest base. तो basic character जो है आपका it is decreasing, it decreases, right? Now we have come to the very important discussion on lanthanides, and this is atomic and ionic radii. तो अगर आप देखें इनकी एटॉमिक आयनिक रेडियाई फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटीशियम, अगर हम +3 स्टेट में देखें इट इज़ 173 पिकोमीटर लैंथेनम की एंड इट इज़ 183 एंड दिस इज़ 173 पिकोमीटर। तो केवल 10 पिकोमीटर का डिफरेंस है, डिक्रीज हो रही है 10 पिकोमीटर में। मतलब ये 14 एलिमेंट, अगर मैं देखूँ 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 एलिमेंट ये 10 पिकोमीटर में सिमट जा रहे हैं। So there is a steady decrease in the size, and this steady decrease in the size of lanthanide is known as lanthanide contraction. ठीक है, और इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह सिर्फ यही है कि 4F अंडर जाएंगे और उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है, तो वो अपने आप को बढ़ते हुए न्यूक्लियर चार्ज से स्क्रीन नहीं कर पाते हैं। हर बार जैसे ही नया इलेक्ट्रॉन आता है एफ में, वो और ज़्यादा इन्वाल्व पोल एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो 4F में इन्वार्ड पुल ज़्यादा लगता है क्योंकि वो स्क्रीन नहीं कर पाते एक दूसरे को, एंड दैट इज़ वाई देयर स्क्रीनिंग, एक तो स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूवर्ड्स द न्यूक्लियस बिकम्स हायर। तो पूरा का पूरा साइज कॉन्ट्रैक्ट करता है और ऑलमोस्ट सबका बराबर ही है। अगर आप देखें केवल 10 पिकोमीटर का डिफरेंस है। तो इतना साइज़ में कम डिफरेंस होने की वजह से बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जैसे सबसे पहला जो कॉन्सिक्वेंस है वो अगर आप देखें 3D 4D 5D सीरीज़ में, 3D 4D 5D, ठीक है, मैं लिख रही हूँ स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम हैफनियम टंगस्टन, ये है यट्रियम जिरकोनियम नियोबियम टेंटेरियम लैंथेनम हैफनियम
टंगस्टन। ये आप देखिए, दिस इज 3D 4D 5D। इधर एटॉमिक रेडियाई इज डिक्रीजिंग, यू सी एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज हो रही है, इधर एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो रही है। इसके बाद मेंबर्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एक जैसे साइज के हैं। तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या होता है कि जो 3D 4D एंड 5D मेंबर्स हैव गॉट ऑलमोस्ट सेम साइज। आपके 4D 5D मेंबर्स का साइज एकदम सेम हो जाता है ना। जर्कोनियम एंड हैफनियम, जर्कोनियम जर्किन आपने बहुत सुना होगा, ज्वेलरी में यूज होता है डायमंड के सब्सटीट्यूट की तरह। जर्कोनियम एंड हैफनियम का ऑलमोस्ट सेम एटॉमिक रेडियाई है। नियोबियम, टेंटेलियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, ठीक है। इन द नेचर दे आर फाउंड टुगेदर, नेचर में ये साथ साथ पाए जाते हैं एंड देयर सेपरेशन इज नॉट easy. This is the biggest consequence of lanthanide contraction. Okay, so that was about lanthanides, and let's move on to actinoids. Actinoids की अगर हम बात करें, ये 14 है, these are 5F series, these are 5F series, ठीक है। और ये भी 14 एलिमेंट्स हैं, तो 7 इधर लिखते हैं, 7 इधर लिखते हैं। तो प्रेसाइडिंग जो एलिमेंट है वो है आपका एक्टिनियम, तो थोरियम, प्रोटेक्टेनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिसियम, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडलियम, नोबेलियम, लॉरेंसियम, ठीक है। तो ये आपका 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 फर्मियम, 101, 102, 103 लॉरेंसियम, ठीक है। ये मेंबर है क्योंकि इसमें 5F में होगा। इसका एक्टिनियम का देखें तो इट विल बी रेडॉन 5F0 6D1 7S2। बट इसकी जस्ट बात थोरियम है, वो है इन अ ट्रांजिशन, बट द इलेक्ट्रॉन इज नॉट एंटरिंग इनटू F ऑर्बिटल। दिस इज क्वाइट सरप्राइजिंग। इट विल बी 5F0 6D2 7S2, and here it will be 5F3 6D1 7S2, फिर ये 5F4 6D1 7S2, देन इट इज 5F, अब यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक है। 4 के बाद 5 नहीं, 6D0 7S2, देन 5F7 6D0 7S2, और 5F3 से किया क्या मैंने, सॉरी 5F2 3 4 5 6, राइट, यस 5 नहीं होता 6। एंड देन अमेरिसियम, थोड़ा थोड़ा आप याद रखेंगे, गलतियाँ नहीं होंगी। 7 6D0 7S2, देखिए अमेरिसियम एंड क्यूरियम। मुझे क्यूरियम याद है कि क्यूरियम पर आना चाहिए 5F7 6D1 7S2, ठीक है। तो क्यूरियम +4 में रहेगा 5F7, एंड देन 7 के बाद यू सी इट विल बी 5 7 8 फिर 9 6D0 7S2, F10 6D0 7S2, F11 6D0 7S2, भाई आपका सेम आ जाएगा 5F12 6D0 7S2, 5F13 6D0 7S2, 5F14, बाकी सब बहुत सिंपल है, ठीक है। 5F14 6D1 7S2, तो याद रखिएगा लॉरेंसियम +3 देगा, वही सेम जो अभी तक हमने पढ़ा था, कंपेयर कर लीजिएगा। हेयर इट इज़ 7, देन इट इज़ 1। तो दिस इज़ अबाउट कॉन्फ़िगरेशन, और इसी के बेसिस पर आप इनकी
बहुत सारी स्टेट देखेंगे। +3 तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, बट थोरियम के लिए +3 +4 दोनों आ जाएगी। यहाँ पर अगर देखें 3 4 5 सब आ जाएगी। यूरेनियम की +3 +4 +5 +6। नेपच्यूनियम ये आपका आ गया +3 4 5 6। और ऐसे ही अमेरिसियम में देखेंगे तो आप अमेरिसियम 7 के बाद आपका जो है कोशिश करेगा ना दे, फिर भी +3 4 5 और 6। बाकी मेंबर जो है आपके कम ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं, +3 4 3 4 ही देंगे। ठीक है, तो कोई बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट का नहीं। ये हाँ ये है कि ये ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं एज़ कम्पेयर टू लैंथेनाइड्स, और उसकी वजह यही है कि जो 5F हैज़ गॉट पुअर पेनिट्रेशन इफेक्ट एज़ कम्पेयर टू 4F. So because of poor penetration effect, the inward pull is more in case of actinoids as compared to lanthanides. As far as their properties are concerned, इनके MPVP बहुत हाई होते हैं एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में पैरामैग्नेटिक होंगे। कॉम्प्लेक्स, यस बहुत क्वेश्चन आता है कि दैट दे हैव गॉट ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि इनका चार्ज ज़्यादा है, ठीक है, और साइज़ कम है। साइज़ कम क्यों है? क्योंकि जैसे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है वैसे ही एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन है, बट लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन याद रखिए ड्यू टू द पुअर शेडिंग इफेक्ट ऑफ 4F। उनकी शेडिंग इफेक्ट इज़ वेरी पुअर एंड दैट इज़ वाई they experience more inward pull, but the shading effect of 5F is poorer, है ना, बहुत कम है, poorer than 4F. So what happens, they experience a higher force towards the nucleus, and that is why their actinide contraction is greater from element to element. और contraction greater है तो size कम है, charge ज़्यादा है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा complex बनाने की tendency रखते हैं। So it was about lanthanides and actinoids. Now we'll take a break of 1 minute break, and I'll show you some PowerPoint slides about some complexes of KMnO4 and K2CR207, and we'll do some experiment, some reactions too.